Good morning, students. This is Unit 2, Section C, Cookies for Santa by Ken Nesbitt. This is Part B. Okay, so in this video, I will explain you this poem word by word. Okay, this poem, Cookies for Santa, I already told you that highlights the carelessness of the poet when he talks about how he accidentally dropped the cookies on the floor. The poet thought that it was best to eat each of the cookies because he felt that Santa was overweight. Santa was fat and needed to check his weight. The poet was not doing everything accidentally. Okay, so this poem, Cookies for Santa, is written by American author Ken Nesbitt. Now I will explain you this poem word by word. I baked a dozen cookies and I put them on a plate and I set them out for Santa Claus except for one I ate. So here the poet baked dozen of cookies. It means he baked 12 cookies and he set that cookies on a plate for सेंटा क्लॉज. ठीक है, उसने सेंटा क्लॉज के लिए कुकीज़ बेक किए 12 कुकीज़ एंड उसने वो प्लेट में अरेंज कर दी है क्रिसमस ईव के दिन ईव के लिए. एक्सेप्ट फॉर वन आई एट एंड आउट ऑफ 12 कुकीज़ ही बेक्ड, उसमें से 1 कुकी वो टेस्ट करने के लिए खा लेता है. ठीक है, सो नाउ 11 कुकीज़ आर लेफ्ट in next paragraph. That cookies was amazing and I couldn't quite resist. So I ate another one that I was sure would not be missed. Then after tasting उसको वो cookies कैसी लगती है पोएट को? That cookies was amazing. In taste cookies बहुत ही टेस्टी रहती है. सो वो अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाता है कि वो और ना खाए. सो कुकीज़ इतनी ज़्यादा टेस्टी रहती है कि स्टार्टिंग में वो एक खाता है देन वन मोर वो खा लेता है. ठीक है, वो उसको खुद पे कंट्रोल नहीं रहता. सो हाउ मैनी कुकीज़ आर लेफ्ट? 10 कुकीज़ आर लेफ्ट. ओके, नाउ आई न्यू इट वुडेंट मैटर इफ आई ओनली एट वन मोर. Then I gobbled up another one. Why not? That's only 4. Then author कहता है I know it wouldn't matter if I only ate one more. कोई भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर मैं एक और कुकी खा लूँ. Why? Because उसने 12 कुकीज़ बेक की है एंड अभी 10 कुकीज़ उसके प्लेट में हैं. सो वो ये एक्सक्यूज़ दे के एक और खा लेता है. ठीक है, आफ्टर दिस that I gobbled up another one. उसके बाद वो एक और gobbled means ate up quickly. Okay, वो फटाफट उसके बाद एक और खा लेता है. Why not? That's only 4. And वो कहता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अभी तो मैंने only 4 कुकीज़ खाई है, 12 में से 4 कुकीज़ ही मैंने खाई है, तो इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता. Now I accidentally dropped another couple on the ground. I knew Santa wouldn't want them, so I swiftly scarfed them down. Now जो poet है वो accidentally एक couple of cookie means pair of cookies ground पे गिर जाती है या फिर we can say कि वो drop कर देता है. Okay, now वो ये excuse देता है कि floor पे गिरी हुई cookies Santa Claus नहीं खाएगा. So वो pair of cookie फटाफट scarf them down. It means वो she ate quickly. वो फटाफट खा लेती है वो couple of cookie. Now another couple disappeared. एक और pair of cookie disappear हो जाती. It means गायब हो जाती. कहाँ गई? वो पोएट खा गया, उसको खुद पे कंट्रोल नहीं है. Because cookies was amazing. I may have eaten those. उसने though I couldn't say for certain, but I guess that's now how it goes. वो जो couple of cookies disappear हुई है वो कहाँ गई? वो पोएट ने खा ली. Okay, I figured 4 was likely more than Santa Claus would need,
So I polished off another few with unexpected speed. Now जो पोएट है वो काउंट करता है प्लेट में कितनी कुकीज़ बच गई है लेफ्ट. हाउ मेनी कुकीज़ आर लेफ्ट? ओनली 4. आउट ऑफ 12 ओनली 4 कुकीज़ आर लेफ्ट. एंड फटाफट जो बची हुई 4 कुकीज़ है वो भी पोएट खा लेता है, ठीक है, बिकॉज उसको कंट्रोल नहीं होता है एंड प्लेट एम्प्टी हो जाती है बहुत ही अनएक्सपेक्टेड स्पीड में. मतलब बहुत ही फटाफट से, बहुत ही तेज़ी के साथ वो कुकीज़ वो फिनिश कर देता है, 12 कुकीज़. बिफोर आई न्यू वॉट हैपेंड ऑल द डैमेज हैड बीन डन एंड आई रियलाइज आई हैड एक्सीडेंटली ईटन एवरी वन. नाउ किस डैमेज की बात चल रही है यहाँ पे, किस नुकसान की बात चल रही है? सारे कुकीज़ ख़त्म होने की, सारे कुकीज़ एक्सीडेंटली फिनिश करने की का डैमेज जो उसने पोएट ने किया है. एंड उसको ये तब रियलाइज़ होता है जब वो 12 कुकीज़ खा लेता है एंड उसको ये बताता है कि मैंने ये डैमेज कर दिया, ये नुकसान कर दिया कि मैंने सारी कुकीज़ जो मैंने बेक की थी सेंटा क्लॉज के लिए वो सब फिनिश कर दी. नाउ इन लास्ट पैराग्राफ आई गेस it's best since Santa sort of needs to watch his weight when he visits us this Christmas. I sure hope he likes the plate. Now end of the poem Santa Claus हमें ये रीज़न देता है कि ये जो मैंने कुकीज़ फिनिश की ये मैंने बेस्ट किया. वाई? बिकॉज वो ये एक्सक्यूज़ देता है कि सेंटा क्लॉज जो है वो बहुत ही ओवर वेट है, बहुत ही मोटा है एंड सेंटा क्लॉज को अपना वेट चेक करने की ज़रूरत है, उसको अपना वज़न चेक करने की ज़रूरत है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा हैवी है, ओवर वेट है. और मैंने कुकीज़ फिनिश करके अच्छा किया बिकॉज वो कुकीज़ खा लेता तो और ज़्यादा हैवी हो जाता और ज़्यादा वेट गेन कर लेता. तो ये मैंने बहुत बेस्ट किया उसके लिए कि ना वो मेरी कुकीज़ खाएगा ना उसका वेट गेन करेगा वो. सो आई गेस इट्स बेस्ट, ठीक है, मैंने ये बेस्ट किया. ये एंड ऑफ द पोएम पोएट एक्सक्यूज़ देता है और वो कहता है कि सेंटा क्लॉज क्रिसमस पे हम लोग के घर आएगा तो वो एम्प्टी प्लेट देख के खुश होगा. वाई? बिकॉज ये सब मैंने उसी के लिए किया है, उसके वेट गेन ना हो इसलिए किया है. ओके, सो इनफ फॉर टुडे. होप यू फाइंड द लेसन यूजफुल. थैंक यू एंड हैव अ गुड डे.